السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سینیٹ الیکشن سیاسی ٹینشن، سندھ میں پی ٹی آئی کو جھٹکا لگنے پر ارکان بے قابو۔ اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ 3 منحرف ارکان کریم بخش قبول، اسلم ابرو اور شہریار شر ایوان میں پہنچے تو پی ٹی آئی کے رہنما نے انہیں گھیر لیا۔ اسپیکر ڈائس کے سامنے ارکان گتم گتا ہو گئے۔ اسپیکر نے اسمبلی سیکیورٹی کو طلب کر کے ارکان کو باہر نکالا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے ایوان کے اندر لڑائی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دے دیا۔ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمارے ایم پی ایس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ زرداری مافیا چور ہے، کریم قبول کو بھی پی پی والوں نے اغوا کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پیسہ اور لالچ کے باوجود سینیٹ انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اپوزیشن جماعتیں سینیٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم سے مسلسل دوسرے روز بھی تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتیں، سینیٹ الیکشن پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات، سینیٹ الیکشن اور پنجاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم، جی ڈی اے، بلوچستان عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی میری حمایت میں سامنے آئیں گے۔ سینیٹ انتخابات کے لیے سیاسی ماحول گرم، وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور محمد علی ملاقات میں شریک ہوئے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم ارکان ایوان سے غیر حاضر، کوئی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ سینیٹ انتخابات کے لیے سندھ اسمبلی کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی درخواست، سیکرٹری سندھ اسمبلی نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو خط لکھ دیا۔ سینیٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ، ظہرانے اور عشائیے جاری، الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق انتخابی سرگرمیوں پر پابندی۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی جانب سے اپوزیشن جماعت کے قائدین اور ارکان کے اعزاز میں آج عشائیہ دیا گیا۔ سینیٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی سینیٹ الیکشن جیتیں گے، سپریم کورٹ میں ریفرنس، حکومت کی بوکھلاہٹ تھی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے حکومت پر وار، کہا ہر صوبے سے آوازیں آ رہی ہیں، ٹکٹیں صحیح نہیں بانٹی گئیں، اس ماحول میں حکومت میں بیٹھی جماعت کو اپنی فکر ہے۔ الیکشن کمیشن کا پرانے طریقہ کار کے تحت سینیٹ انتخابات کرانے کا فیصلہ، نئے ارکان کا انتخاب خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوگا۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق وقت کم ہونے کے باعث طریقہ کار نہیں بدلا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے موصول نہیں ہوئی، مختصر تحریری رائے پر منعون عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کون جیتے گا ایوان؟ کل سجے گا سینیٹ انتخابات کا میدان، سب سے بڑا معرکہ اسلام آباد کی جنرل نشست پر ہوگا۔ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مد مقابل، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی تگڑا مقابلہ متوقع۔ سینیٹ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آغاز ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں سینیٹ انتخابات میں سیف اللہ ابرو کو حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف اور خواجہ آصف کو سینیٹ انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد جانے کی اجازت دے دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت دونوں اراکین کو اسلام آباد لے کر جانے کا حکم دے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، لانگ مارچ سے قبل احتجاج کا شیڈول جاری، 3 مارچ کو میاں والی، 5 مارچ کو گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، 6 مارچ کو گجرات اور چکوال، 7 مارچ کو سیالکوٹ، ناروال اور لودھرا میں احتجاج کیا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، احتساب عدالت نے خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع کر دی۔ خواجہ آصف کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں اور پولیس میں تصادم، ایک متوالا زخمی ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، لندن کی جائیدادیں میرے جج بننے سے بھی پہلے کی ہیں، میں نے اپنے ریٹرنز میں کبھی بھی اہلیہ کی جائیدادیں ظاہر نہیں کی، مجھ پر بے نامی جائیداد اور منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگایا گیا۔ اسلام آباد میں وکلا کے چیمبرز گرانے کے خلاف درخواست خارج، سپریم کورٹ کا وکلا سے فٹ بال گراؤنڈ فوری طور پر خالی کرنے کا حکم، سپریم کورٹ نے تمام غیر قانونی چیمبرز گرانے کا بھی حکم دے دیا۔ دوران پرواز مسافر کا انتقال، بھارتی ایئر لائن کے طیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، 60 سالہ مسافر طبیعت خراب ہونے کے باعث جہاز میں انتقال کر گیا۔ اسلام آباد میں تھانہ شالیمار کے علاقے مارگلہ روڈ پر سعودی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، سعودی سفارت خانے کے اہلکار کو تھانہ شالیمار منتقل کر دیا گیا۔
پاکستان میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری، ایک دن میں وائرس مزید 42 زندگیاں نکل گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1163 نئے کیسز رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 5,82,529 ہو گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات، امریکی سفیر نے کہا ڈینیل پرل قتل کیس پر امریکی سفیر نے کہا ڈینیل پرل کیس میں پاکستانی عدالت سے انصاف کی توقع ہے، پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک چین تعلقات کے قیام کو 70 سال مکمل، پاک چین تعلقات پر اسلام آباد اور بیجنگ میں بیک وقت ورچوئل تقریبات کا انعقاد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم تھم نہ سکے، دہشت گردی کے الزام میں سری نگر سے مزید 3 کشمیریوں کو حراست میں لے لیا گیا، اسیر رہنما غلام نبی وسیم کی طبیعت بگڑ گئی۔ پی ایس ایل کے تمام میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے، آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی سمی برنی کی پریس کانفرنس، کہا اسٹیڈیم میں 50% شائقین موجود ہوں گے، ایس او پیز پر عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ بحر بلوچ کا ساحل اور وادی بولان کا دامن، مہر گڑھ تہذیب کا امین، آج دنیا بھر میں بلوچ کلچر ڈے منایا گیا، مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اور اردو ادب کے معروف شاعر ناصر کاظمی کو مداحوں سے بچھڑے 49 برس بیت گئے، لیکن ان کی شاعری آج بھی دلوں کو تازگی عطا کرتی ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں سینیٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے پیسہ اور لالچ کے باوجود سینیٹ الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوامی نمائندوں کی جانب سے اٹھائے گئے عوامی مسائل حل کریں گے۔ پہلی بار پسماندہ علاقوں کو زیادہ ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کی ترجیح عام آدمی اور پسماندہ علاقے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں سینیٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ میں اسی لیے شفاف انتخابات کے لیے اوپن ووٹنگ کا حامی تھا۔ اراکین سے رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم متحد ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے پیسہ اور لالچ کے باوجود سینیٹ الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی ارکان اسمبلی کو آج ظہرانے پر بلایا ہے۔ ارکان اسمبلی کو وزیر اعظم ہاؤس میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اراکین کو سینیٹ پولنگ ڈے پر حاضری یقینی ہدایت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ارکان کو ظہرانے میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی ہدایت پر حمزہ شہباز سیاسی سرگرمیاں سر انجام دیں گے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کو الگ الگ ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ باہمی اختلافات سے بچنے کے لیے لیگی قیادت کے اہم فیصلے سامنے آ گئے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز رہائی کے بعد سیاسی طور پر متحرک ہو گئے۔ حمزہ شہباز پنجاب کے پارٹی کے معاملات کو دیکھیں گے، جبکہ مریم نواز عوامی سطح پر پارٹی کا چہرہ ہوں گی۔ حمزہ شہباز حکومت مخالف تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے پنجاب میں پارٹی کو منظم کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع اور ڈویژن کی سطح پر ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق ملاقاتوں میں حمزہ شہباز ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کو حکومت مخالف تحریک کے لیے ٹاسک تفویض کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے ہدایت کی ہے کہ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی اسلام آباد ہر صورت پہنچیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے سینیٹ الیکشن میں لیگی اراکین قومی اسمبلی کی 100% حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، ان کی جیت پارٹی کی جیت ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے تمام ممکنہ پارٹی وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے سینیٹ الیکشن سے قبل حکومت کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے اچھی خبریں آنے کی نوید سنائی ہے۔ ایوان بالا کے الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں، جہاں 48 ارکان کا انتخاب کیا جائے گا۔ پنجاب سے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، بلوچستان اور کے پی میں بھی شام تک ہو سکتی ہے اور وہاں سے اچھی خبریں آنے کی امید ہے۔ اپنے بیان میں وزیر داخلہ نے ایک بار پھر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سینیٹ الیکشن میں کامیابی کے دعوے کرنے والوں کو ایک نشست پر شو آف کرنا ہے، مگر اپوزیشن کو ناکامی ہوگی۔ شیخ رشید نے موجودہ سینیٹ الیکشن کو صرف ایک سیٹ کا الیکشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی نشست پر حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کامیاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے بعد اپوزیشن والے نئی کہانی ڈھونڈیں گے کہ ٹی وی اسکرین پر کیسے آباد رہیں۔
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। 24 घंटों बाद अपोजिशन का रोना धोना शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि अपोजिशन की नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है। अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है ना पॉलिसी। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी राय जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की राय में वाज़ेह किया गया है कि सेनेट के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए शफाफ इंतखाबात कराए। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने अपनी राय में वाज़ेह किया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए अदालत वर्कर्स पार्टी केस में पहले ही फैसला दे चुकी है। इस केस में वोट की सीक्रेसी दायमी ना होने के हवाले से फैसला दिया गया। अदालत ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अदालत ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 3/218 के तहत शफाफ इंतखाबात कराए। खास तौर पर करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आर्टिकल 220 के तहत तमाम कौमी सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से ताउन करने की पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट का इख्तियार है कि इलेक्शन के मामलात में कानून साजी करे। समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच के मेंबर जस्टिस याहिया आफरीदी का मुख्तसर इख्तिलाफी नोट भी सुप्रीम कोर्ट की राय का हिस्सा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जहां हुकूमत खुद वोट चोरी करवाए वहां इंसाफ की क्या तवक्को होगी। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे और पाकिस्तान की सियासत को नया रुख मिलेगा। दुनिया भर में राय शुमारी खुफिया होती है, खुफिया ना हो तो राय शुमारी नहीं होती। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि LNG केस 2.5 साल गुजरने के बाद भी वहीं रुका हुआ है। 30 दिन में केस का फैसला होना था, लेकिन केस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी अक्सरियत से सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि हुकूमती जमात के अरकान भी मायूस हो गए। हर रुकन असम्बली मुल्की हालात को सामने रखकर ज़मीन के मुताबिक फैसला करेगा। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है और अदालत ने खुफिया राय शुमारी के फैसले को बरकरार रखा है। देखना पड़ेगा कि फैसला एक राय है या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में शिफाफियत बरकरार रखी जाए। जब तक पार्लियामान तरमीम नहीं करती, इलेक्शन का यही सिलसिला रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का ये भी कहना था कि ये वही हुकूमत है जिसने 20 पैराजाइडिंग अफसरान को अगवा किया और अभी तक मालूम नहीं हो सका कि उन्हें किसने अगवा किया। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 42 अमवात और 1163 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 22,184 है और 5,47,406 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,938 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,82,528 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 22,184 है और 5,47,406 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 5,391 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,353, खैबर पख्तूनख्वा में 2,085, इस्लामाबाद में 501, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 200 और आज़ाद कश्मीर में 306 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 44,516 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 72,615, सिंध में 2,58,412, पंजाब में 1,72,683, बलूचिस्तान में 19,066, आज़ाद कश्मीर में 10,280 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,956 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन जारी है और पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि 63 साल से बड़ी उम्र के अफराद को भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जा चुका है। गुज़िश्ता दिनों एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के इम्तिहान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नंबर्स हासिल करने वाली पाकिस्तानी तलबा ज़ारा नईम और पावरी वीडियो से वायरल होने वाली पार्टी गर्ल दनानीर मुबीन खबरों की जीनत बनी रही। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दनानीर मुबीन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंटरनेट सार्फिन के जानिब से ज़ारा नईम के बरअक्स दनानीर को मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलने पर अफसोस का इजहार किया जा रहा था। ताहम अब ज़ारा नईम ने अपना मुआवजना दनानीर से किए जाने पर एक बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर ज़ारा नईम का एक वीडियो वर्चुअल इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी गर्ल दनानीर के साथ अपना मुआवजना किए जाने पर कदरे मायूसी हुई है और इस सूरत हाल से खुश नहीं है। ज़ारा का कहना था कि वायरल होने में इनके और दनानीर के मुकाबला का भी बड़ा किरदार था, जो कि गलत है।
वो समझती हैं कि ये गलत है और यकीन है कि दनानीर को भी गलत महसूस हुआ होगा। ज़ारा ने कहा कि दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना किया जाना बिल्कुल गलत है और दो मुख्तलिफ सिमतों का एक साथ मुवाजना करना कोई अक्लमंदी नहीं। इससे कहीं दनानीर की हौसला शिकनी हुई है तो कहीं मेरी। उन्होंने कहा कि तनकीद को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन अगर वो मुस्बत हो तो। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। तुर्क अदाकार जलाल आल की पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास के हमरा दिल दिल पाकिस्तान गाने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जो चंद ही घंटों में वायरल हो गई। कैप्शन में अदाकार ने लिखा, अल्लाह पाकिस्तान और तुर्की का भाईचारा इसी तरह कायम व दायम रखे। इस्लामी तारीख पर मबनी तुर्क ड्रामा सीरियल अतरुल गाजी के पाकिस्तान में मकबूलियत के बाद दोनों ममालिक के फनकारों में कुर्बत देखने में आई है। जहां ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकारों ने पाकिस्तान का दौरा किया, वहीं पाकिस्तान के नामवर फनकारों ने भी तुर्की का दौरा किया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के कामयाब अदाकार अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद ने पिछले माह तुर्की का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा अदाकार रीमा खान समेत दीगर अदाकार मौजूद थे। इस मौके पर रीमा ने तुर्क अदाकार जलाल आल के हमरा पाकिस्तानी गीत भी गुनगुनाया। पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जो चंद ही घंटों में वायरल हो गई। कैप्शन में अदाकार ने लिखा, अल्लाह पाकिस्तान और तुर्की का भाईचारा इस तरह कायम दायम रखे। भारतीय तैयारे को मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब होने पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ गई। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुकाम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को हंगामी लैंडिंग की इजाज़त दे दी, ताहम मुसाफिर को बचाया ना जा सका। भारतीय निजी फ़ज़ाई कंपनी इंडिगो की परवाज़ 6E1412 शारजा से लखनऊ जा रही थी के दौरान परवाज़ एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई। मुसाफिर की हालत को देखते हुए तैयारे के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को उतारने की इजाज़त मांगी। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुकाम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को हंगामी लैंडिंग की इजाज़त दी, ताहम मुसाफिर को बचाया ना जा सका। कराची एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि हबीबुर रहमान नामी जिस भारतीय मुसाफिर के लिए तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की, वो तैयारे में ही खालिके हकीकी से जा मिला। डॉक्टरों की जानिब से मौत की तस्दीक। दस्तावेजी कार्रवाई और ज़रूरी इक़दामात के बाद भारतीय तैयारा कराची से भारतीय शहर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने दावा किया है कि फ़ौजी ऑपरेशन में 30 जंगजू हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से हलाक और ज़ख्मी होने वाले जंगजुओं की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है, जबकि अफ़गान फ़ौज के होने वाले नुकसान से मुतालिक भी आगाह नहीं किया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबे के पेसा के जिला निजरात में अफगान बर्री फौज के कमांडोज और अफगान फिजाइया के मुश्तरका ऑपरेशन में 30 जंगजू मारे गए। हलाक होने वालों में 16 का ताल्लुक अलकायदा और 14 का तालिबान से है। ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि अफगान फिजाया ने जंगजू के ठिकानों पर बमबारी की, जबकि बर्री फौज ने इलाके को क्लियर कराया और जख्मी जंगजुओं को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। वजारत दिफा की जानिब से हलाक और जख्मी होने वाले जंगजुओं की शनाख्त जाहिर की गई है, जबकि अफगान फौज के होने वाले नुकसान से मुतालिक भी आगाह नहीं किया गया। तालिबान और अलकायदा की जानिब से ताहाल हुकूमती दावे की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। सूबे कैपीसा में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें आम हैं। और अब शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। मुल्क में फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद में 30% कमी वाक़ई हो गई। टैक्स साल 2021 की लिस्ट में 21.78 लाख फाल टैक्स दहिंदगान के नाम शामिल हैं। गुज़िश्ता टैक्स साल की जारी करदा फहरिस्त में फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद 31.2 लाख थी। फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद तकरीबन 22 लाख रह गई।
गुज़िश्ता रोज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त बराए 2021 जारी की है, जिसके मुताबिक फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद में 9,35,000 की कमी आई है। 22 लाख फाल टैक्स दहिंदगान नेशनल टैक्स नंबर NTN रखने वाले इन लोगों की तादाद का 1/3 हैं, जो पाकिस्तान में बिजनेस तो कर रहे हैं मगर टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते। यानी पाकिस्तान में कारोबार करने वाले और NTNA के हामिल हर 3 में से 2 अफराद और कंपनियां टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते। इससे कवानीन के नफाज में FBR की नाकामी जाहिर होती है। 2021 की लिस्ट में 21.78 लाख फाल टैक्स दहिंदगान के नाम शामिल हैं। गुज़िश्ता टैक्स साल की जारी करदा फहरिस्त में फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद 31.2 लाख थी। टैक्स कवानीन के तहत जो अफराद और कंपनी फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन और दीगर कारोबारी सरगर्मियों पर दोहरा टैक्स अदा करना होता है। काबिल तशवीश बात यह है कि लोग 100% जायद टैक्स अदा करने के लिए तो तैयार हैं, मगर वो टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनने पर राजी नहीं। FBR के तर्जुमान सैयद नदीम रिजवी ने कहा कि गुज़िश्ता बरस टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले 5 लाख अफराद ने रवा बरस टैक्स फाइल नहीं किया। उनका कहना था कि मजीद 5 लाख अफराद ने मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद टैक्स रिटर्न तो फाइल किया मगर जुर्माना अदा नहीं किया, जिसकी वजह से उनके नाम फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल नहीं। FBR तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 75,000 नए टैक्स दहिंदगान सामने आए हैं। LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब माया गैस की कीमत 160 रुपए फी किलो तक हो गई है। साल 2020 के दौरान मुल्क में 7,35,460 मैट्रिक टन LPG की पैदावार हुई थी, जबकि 4,73,900 टन LPG समुद्री रास्ते और 6,60,000 टन जमीनी रास्ते से LPG दरामद की गई थी। ओगरा ने मार्च के लिए LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक LPG की फी किलोग्राम कीमत 2 रुपये के इजाफे से 160 रुपये हो गई, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 22 रुपये बढ़कर 1,885 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 84 रुपये बढ़कर 7,252 रुपये की हो गई। LPG की पैदावारी कीमत 1,577 रुपये के इजाफे से 96,860 रुपये फी टन हो गई है। ख्याल रहे कि साल 2020 के दौरान मुल्क में 7,35,460 मैट्रिक टन LPG पैदावार हुई थी, जबकि 4,73,900 टन LPG समुद्री रास्ते और 6,60,000 टन जमीनी रास्ते से LPG दरामद की गई थी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोकर ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो LPG की कीमत को अवाम की दस्तरस में लाने के लिए लेवी समेत दीगर तमाम टैक्सों का खात्मा करे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में गैर मेयारी सिलेंडर्स फटने से यौमिया 2 से 3 मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। गुजरांवाला में 400 से ज़ायद गैर मेयारी सिलेंडर बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं, जिन्हें फौरी तौर पर बंद किया जाए और मुल्क भर में गैर मेयारी सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि मासूम जानों को ज़ाया होने से रोका जा सके। और अब जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस ड्रामा इंडस्ट्री की हर दिल अजीज अदाकारा आयजा खान ने फिल्मों में काम ना करने की वजह बता दी। तफसीलात के मुताबिक आयजा खान ने बताया कि जब भी कोई नई फिल्म बनने लगती तो सबसे पहले मुझे पेशकश की जाती है, लेकिन मैं अपनी फैमिली और बच्चों को ज़्यादा वक्त देती हूँ। आयजा खान ने कहा कि फिल्मों में काम करने से ज़्यादा घर पर रहना पसंद है। ताहम अदाकारा का कहना है कि जल्द ही मद्दाह मुझे नए प्रोजेक्ट में यादगार किरदार में देखेंगे। दूसरी जानिब अदाकारा आयजा खान ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमारी फैशन इंडस्ट्री दुनिया भर में मकबूल है। अदाकारा का कहना था कि उन्हें फैशन शोज़ में शिरकत करना अच्छा लगता है। आयजा खान ने कहा कि टीवी नाजरीन की मशकूर हूँ क्योंकि वो उनके ड्रामों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा रेशमा के बेटे इंतकाल कर गए। गुलकारा के बेटे सावन अली रेशमा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में ले जाया गया, जहां वो जान बर ना हो सके। सावन रेशमा की उम्र 50 साल थी और वो महकमा सुई गैस लाहौर रीजन में मुलाजमत के साथ गुलकारी से भी वाबस्ता थे। गुलकार सावन की बीवी महरो रेशमा भी उनके साथ कई प्रोग्राम्स में गुलकारी का मुजाहरा कर चुकी हैं। सावन रेशमा पाकिस्तान टेलीविजन और प्राइवेट प्रोडक्शन के तहत कई प्रोग्राम्स में अपने फन का लोहा मनवा चुके हैं। सावन अली रेशमा के बेटे सनी का कहना है कि उनके वालिद की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उनको मकामी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ वो इंतकाल कर गए। सावन अली
रेशमा की वालदा रेशमा ने बुलबुल सहरा के नाम से शोहरत पाई। गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत चुके हैं। गुलकारा रेशमा की लंबी जुदाई की गूंज आज भी बरकरार है। सालों तक दुनियाए मौसीकी पर राज करने वाली मारूफ गुलकारा के गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। सुरीली और मुनफरिद आवाज के साथ गायकी को नई जहत देने वाली पठानी बेगम अलमारूफ रेशमा ने 1947 में राजस्थान में जन्म लिया और 12 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर लाल मेरी गाकर फनी सफर का आगाज किया था। 3 नवंबर 2013 को लेजेंडरी गुलकार रेशमा गले के सरतान के 22 मद्दाहों को लंबी जुदाई दे गई, मगर उनका गाया कलाम उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा उनकी याद ताजा रखेगा। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 को आलमी वबा कोरोना से बचाने के लिए बड़ा फैसला किया है और तमाम फ्रेंचाइजर्स से ताउन की दरख्वास्त भी कर दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तानी निसात ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर फवाद अहमद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर PCB हुकाम ने तशवीश की लहर दौड़ गई है और क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट PSL को आलमी वबा से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। PCB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात से अब तक 169 PCR टेस्ट कराए गए हैं, जिनमें से मजीद 3 मेंबरान के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद तीनों को करंतना कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि PSL को कोविड-19 से पाक रखने के लिए चौथे रोज PSR टेस्टिंग का अमल दोहराने का फैसला किया है। साथ ही तमाम फ्रेंचाइज के ताउन से मजीद सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में PSL हुकाम आज टीम मालकान से अहम मुलाकात करेंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में आइंदा चंद रोज तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मुकामात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिया -9, इस्तोर -5, कालाम -4, कलात, इसकरदू और बगरोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुध के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।